Let me tell you something. This is going to be a new type of content because this is about the basics of business. This is not related to self improvement. These are not some tricks or tricks जिससे तुम अपना best routine बन सकते हो या फिर you can do the money maxing, looks maxing or hair maxing, whatever. This is just going to be a raw and simple video where I'm going to tell you the basics of business, the marketing, the like whatever you need to know to start a business, right? So this is basically how to start a business, the basics of business, right? And if you're interested, you can continue to watch this, and I want to recommend कि तुम इसको देखो because this is going to be the basic. This is going to be the video where you'll know about things that you don't know for starting a business. And I'm not saying that you need to start a business right now or you need to start a business in your future. I'm just telling कि अगर तुम्हें future में business start करना है या नहीं करना है, but still you should know the basics of business because you are in a society where government jobs are not giving well and are not paying well, and only the exams, if you crack like UPSC, if you crack like NEET or JEE, IT means whatever, only then you can get a good full package. And if you're not like cracking those exams, you are living a mediocre life, right? So I want you guys to learn about the basics of business. If you don't want to hear this out, you can skip this video. It's totally fine. And let's get started with the video. I'm basically recording this so that I can also get the basic knowledge about the business and you can also get the basic knowledge about the business. So let's get started with the business. What is business? Business is, I have all the notes here. Business is basically solving a problem in return of money. Basically, you have an idea, you make a physical solution out of it, you solve someone's problem. किसी भी इंसान की तुम problem solve करके कोई product दे रहे हो या फिर कोई भी एक website या फिर कुछ भी दे रहे हो, and in exchange of that solution they are paying you. Okay, that is business, right? For example, एक दुकानदार जो अपनी शॉप रन करता है वो भी एक बिजनेस रन कर रहा है बिकॉज यू वॉन्ट दैट सोप, और उसके पास सोप है, तुम उससे सोप लेते हो, मतलब वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है, सोप दे रहा है तुमको, एंड इन रिटर्न तुम उसको पे कर रहे हो. दैट इज बिजनेस. बेसिकली गिव एंड टेक. You give money and you take your solution from them, your problems solution from them. Okay, so someone has a problem, you offer a solution and they give you money for that. That is business, right? Now जो branding, marketing, sales and support system होता है, वो उसके बारे में वी आर गोना लर्न. सपोर्ट सिस्टम बेसिकली एक्सचेंज होता है. सपोर्ट सिस्टम क्या है? मनी है, राइट? द मेन थिंग इज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस. तो 3 बेसिक पिलर होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के. फर्स्ट बेसिक पिलर होता है कि व्हाट यू कैन ऑफर. हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी जानेंगे, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पिलर्स दैट हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? सो द फर्स्ट बेसिक पिलर इज व्हाट यू कैन ऑफर. यू कैन ओनली ऑफर द थिंग जिसमें तुम काम कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्किन केयर ब्रांड है, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, कोई हेयर ऑयल है, कोई सिरम है, कोई हेयर स्प्रे है. For example, you think that you can give a sunscreen. You think that you can produce a plastic ka toy for kids. You think that you can produce hair care products, skin care products, whatever. Like, see what you can offer or what you want to offer to the public right there. Second pillar is choose the format only. चूज वन फॉर्मेट ओनली. चूज वन फॉर्मेट का मतलब है या तो फिजिकल प्रोडक्ट होगा या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट होगा. फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कि तुम फिजिकली उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड कोई प्रोडक्ट है वो, एंड प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट वो होगा जो कि वेबसाइट्स हो गई, वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, ठीक है, पेजेस हो गए, एक क्रोम वेबसाइट्स हो गई एंड ऑल, गूगल वेबसाइट्स हो गई, वो होती हैं तुम्हारे डिजिटल प्रोडक्ट्स. तो बिजनेस 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन. ऑफलाइन को तुम ऑनलाइन भी चला सकते हो, लेकिन ऑनलाइन को तुम ऑफलाइन भी चला सकते हो. बट मेरा कहने का मतलब है एक डिजिटल बिजनेस होता है और एक होता है तुम्हारा लोकल एरिया, फिर एरिया वाइज बिजनेस. कि एरिया के अंदर तुम किसी बिल्डिंग के अंदर तुम बिजनेस रन करो, देखो तो डिजिटल बिजनेस मतलब जैसे गूगल हो गया, राइट? किसी एरिया के अंदर भी तो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? इस टाइप के सर्विसेज, इस टाइप के बिजनेस हो सकते हैं. सर्विस हो गई, ब्रांड हो गई, ठीक है? एग्जाम्पल, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गई, ब्यूटी ब्रांड हो गई, वेबसाइट ऑफर्स हो गए, कोचिंग, ज्वेलरी, क्लोथिंग लाइन हो गई. और थर्ड पिलर होता है तुम्हारा ब्रांड आइडेंटिटी. ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब होता है पर्सनालिटी ऑफ योर बिजनेस, कि किस पर्सनालिटी का तुम्हारा बिजनेस है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस पर्सनालिटी यू हैव. स्किन केयर पर्सनालिटी का है, क्लोथिंग लाइन का है, शूज लाइन का है, या किसी भी लाइन का है. या फिर फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ईजी बिजनेस होता है डिजिटल बिजनेस, जो कि होता है तुम्हारा वेबसाइट्स वगैरह पे, या फिर तुम्हारा फ्रीलांसर्स वगैरह पे बिजनेस होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में विच आर रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट पे जाने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। सेल्स के टर्म में अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है जब तुम्हारी प्रोडक्ट कोई बाय करता है, राइट। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन होता है कि टर्निंग इंटरेस्ट इनटू परचेज। मतलब कन्वर्जन, देखो किसी का इंटरेस्ट है तुम्हारे प्रोडक्ट में और तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो उस अगले पर्सन के परचेज में, मतलब इंटरेस्ट परचेज में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट इज लीड। अब लीड का मतलब बहुत कम लोगों को पता है, विच इज समवन इंटरेस्टेड बट नॉट बाइंग। व्हेन यू गो टू अ शॉप, तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो, तुम उसको बाय नहीं करते हो, वो चीज होती है लीड। लीड एक बिजनेसमैन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम लीड को अंडरस्टैंड करते हो, मतलब लीड क्या है कि कोई इंटरेस्टेड है लेकिन वो बाय नहीं कर रहा, लेकिन तुम कन्वर्जन कर सकते हो, मतलब कि कोई इंटरेस्टेड है और तुम उसको बाय करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, मतलब बाय करने के लिए बेसिकली यू आर टेलिंग देम टू बाय इट। सो लेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कन्वर्जन। लेड होता है कि कोई इंटरेस्टेड लेकिन बाय नहीं कर रहा, और कन्वर्जन होता है कि कोई इंटरेस्टेड है और बाय कर रहा है। तो लेड कन्वर्जन में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, और वो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ होती है, राइट। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए। नेक्स्ट इज अपसेल। अपसेल क्या होता है? अपसेल होता है ऑफरिंग एक्स्ट्रा आफ्टर परचेज, मतलब कि कुछ भी बाय वन गेट वन फ्री वाला करना। अपसेल मतलब कि तुम अपसेल कर रहे हो, सेल से ज़्यादा अब एक्स्ट्रा में कुछ दे रहे हो, राइट। इन्वेंट्री होता है कि कितना आपके पास स्टॉक है। अब लीगल और स्ट्रक्चरल टर्म्स के अंदर अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो फर्स्ट आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन, कि एक पर्सन ओन कर रहा है, ठीक है। यू आर द सीईओ, यू आर द को फाउंडर, यू आर द एवरीथिंग, राइट। कोई स्किन केयर ब्रांड है, तुमने फाउंड करा है, तुमने ही ओन कर रहे हो उस बिजनेस को, तो यू आर द सोल प्रोप्राइटरशिप विद इन दैट बिजनेस, ओके। जीएसटी होता है टैक्स ऑन सेल्स। टैक्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट तुम्हारे सेल्स के ऊपर टैक्स लगाती है, तो उसको हम जीएसटी बोलते हैं, वो तुम्हें पे करना पड़ता है। इनवॉइस होता है बिल। बिल मतलब कि किसी पर्सन ने कोई अगर तुम्हारा प्रोडक्ट लिया है तो कितना बिल तुम उसको दे रहे हो, दैट इज द बिल, बेसिकली द स्लिप यू गेट फ्रॉम मॉल और समथिंग। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन होती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होती है तुम्हारी लोगों की, या फिर तुम्हारे ब्रांड नेम की, या फिर तुम्हारी इंडस्ट्री नेम की, वट, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने से तुम्हारा लोगो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, इसको ट्रेडमार्क लेने से तुम्हारा जो ब्रांड का नेम है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, दैट इज द ट्रेडमार्क। अब माइंडसेट टर्म्स की बात करूँ तो होता है कि स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कि टू ग्रो विदाउट लूजिंग क्वालिटी। तुम मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाते हो एंड वो प्रोडक्ट को थोड़ा और ज़्यादा क्वालिटी वाइज मेंटेन करते हो, थोड़ा और ज़्यादा क्वालिटी वाइज अप करते हो विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, मतलब कि अप करने के चक्कर में लो क्वालिटी नहीं कर रहे तुम, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। मतलब कि तुम्हारी कितनी एबिलिटी है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने का। एंड नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कि रेगुलर। ये माइंडसेट होता है कि भाई तुम्हें स्केलेबिलिटी का स्किल अडॉप्ट करना पड़ेगा बिजनेस रन करने के लिए, और कंसिस्टेंसी का स्किल अडॉप्ट करना पड़ेगा बिजनेस रन करने के लिए। आई एम बीइंग वेरी फास्ट एंड बीइंग वेरी रॉ एंड रियल, बिकॉज मैं नोट्स बना रखे हैं एंड आई एम ऑल्सो हियर एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो बाई शूटिंग दिस, सो दैट्स वाई। अब हार्श ट्रुथ बताती हूँ मैं तुमको, तुम मनी के बिना स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस मनी के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट अभी जीरो है तो तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले तुम्हें अर्न करना पड़ेगा और फिर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब तुम पहले अर्न कैसे करोगे? लेट मी गिव यू सम टिप्स, राइट। आइडियाज टू बॉय बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज वीडियो एडिटिंग कर सकते हो किसी के लिए, म्यूजिक एडिटिंग कर सकते हो किसी के लिए, अपने स्किल्स यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो, सोशल मीडिया किसी की आईडी हैंडल कर सकते हो, किसी का चैनल रन कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग कर सकते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, ट्यूटर बन जाओ। अगर तुमको कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्लास को टीच कर सकते हो अपनी मोहल्ले की एरिया में, उसको टीच करो, ठीक है। उनसे इन्वेस्टमेंट लो, इन्वेस्ट करो पैसा, ठीक है, अपने बिजनेस को रन करने के अंदर। पेड कोलैबोरेशंस करो, फ्रीलांसर की जॉब करो, लिंक्डइन की जॉब करो, ठीक है। कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, म्यूजिक राइटिंग कर सकते हो, चैट जीपीटी से तुम म्यूजिक लिखवा के किसी को बेच सकते हो, किसी को मतलब यू नो ऑफर कर सकते हो, दे विल पे यू फॉर दैट। फ्रीलांसर, लिंक्डइन, सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर लाइक मी ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज कमिंग टू द रियल बिजनेस मैकेनिज्म्स, जो कि होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब तुम्हें कोई बिजनेस रन करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, फिर कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब तुम्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म ना यूज़ करके फिजिकल प्रोडक्ट बनाना होता है, मतलब कि कोई सनस्क्रीन बनानी है, फिर कोई क्रीम बनानी है, फिर कुछ भी बनाना है, फिर कोई हेयर ऑयल, सीरम, व्हाटएवर। तो टर्निंग आइडिया इनटू फिजिकल अप्रोच को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। दो वे होते हैं, एक तो तुम मैन्युफैक्चर करो खुद से, और एक तो मैन्युफैक्चर कराओ। करोगे तो होममेड करना पड़ेगा, होममेड के लिए यू मेक इट योर सेल्फ, एंड उसके लिए खर्चा बहुत आता है कि तुम्हें सारा सामान लाना है, और फिर कोई गारंटी भी नहीं होती कि तुम सच से बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तुम्हारे
पूरी नॉलेज है केमिकल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है उसकी पूरी नॉलेज है, फिजिकल एंड केमिकल नॉलेज है, तो तुम बना सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं बना सकते। या फिर तुम उसको मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर कराओ। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है वो भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले तो गिविंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग इट मैन्युफैक्चर्ड, गेटिंग इट डिजाइन, मतलब कि तुम फॉर्मूला दे दो उस इंसान को। ChatGPT से तुम फॉर्मूला ले सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, एंड वो फॉर्मूला उस मैन्युफैक्चरर को दे सकते हो। ऐसे होती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक होती है वाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग। वाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट किसी और का है, लेकिन तुम अपना लोगो लगा देते हो और अपना वेबसाइट अपना ब्रांड का नेम लगा देते हो। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसको हम वाइट लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है फाइंड सप्लायर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग किसी से करानी है तो उसके लिए तुम्हें सप्लायर्स फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। वो तुम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, तुम्हारी कोई लोकल एरिया में इंडस्ट्री है, वहाँ जाके मैन्युफैक्चर करा सकते हो। इंडिया मार्ट एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस तुम रन कर सकते हो, मैन्युफैक्चर करा सकते हो इंडिया मार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड फेयर वो होते हैं, वो जगह होती है तुम्हारी कॉलोनीज में, तुम्हारे शहर में कहीं ट्रेड फेयर लगेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ट्रेड फेयर होते क्या है। ट्रेड फेयर होते हैं जहाँ पे लोग टेम्पररी मार्केट प्लेस रन करते हैं, बेसिकली फैक्ट्री सेटअप होता है, स्टॉल लगते हैं और वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं अपना सैंपल, और तुम उस सैंपल को टेस्ट करते हो और तुम्हें सैंपल अच्छा लगता है, तुम उस मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा सकते हो, ठीक है। ट्रेड फेयर्स लगते हैं। फिर लोकल इंडस्ट्रीज एरियाज हो गए, रेफरल्स होते हैं, रेफरल्स भी होते हैं। रेफरल्स मतलब गेटिंग कॉन्टैक्ट विद पीपल यू ऑलरेडी नो, मतलब कि किसी मैन्युफैक्चरर, तुम्हारा रिलेटिव कोई किसी मैन्युफैक्चरर को जानता है, उस रिलेटिव के थ्रू उस मैन्युफैक्चरर तक तुम पहुँचते हो और अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हो। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, लेकिन बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। लाइक इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस, राइट। सो या ऑलवेज टॉक और टू मल्टीपल सप्लायर्स। मल्टीपल सप्लायर से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सिर्फ एक सप्लायर से बात करते हो और उसी पे स्टिक रहते हो तो तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है, और भी बहुत सारे अच्छे सप्लायर्स होंगे जो कि तुम्हें और अच्छा दे सकते होंगे, लेकिन तुम उनसे बात नहीं करो। तो आई रिकमेंड कि तुम मल्टीपल सप्लायर से बात करो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर। थर्ड होती है सैम्पलिंग का मतलब होता है कि गेटिंग टेस्ट, मतलब कि अगर तुम किसी भी मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हो तो उसको पहले अपना फॉर्मूला दो, उसको डिज़ाइन कराओ स्मॉल बॉटल में, और वो स्मॉल बॉटल अपने घर पे मंगवाओगे, फिर उसे लेके आओ और उस स्मॉल बॉटल को टेस्ट करो, उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करो, उसका स्किन क्वालिटी टेस्ट करो, उसका क्वालिटी टेस्ट करो, उसका टेक्सचर टेस्ट करो, क्वालिटी टेस्ट करो, रिजल्ट देखो उसका कि 5 मिनट बाद तो क्या रिजल्ट रहता है, इचिंग तो नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा तो नहीं है, कुछ भी कट वट तो नहीं है क्लोथ्स में वगैरह, कुछ भी जो भी तुम्हारा फील्ड होगा बिजनेस का, टेस्ट करो, सैम्पलिंग मंगवाओ पहले मैन्युफैक्चरर से, और फिर उस सैम्पलिंग के बेसिस पे तुम उस मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना कंटिन्यू करो और उसको पे करो, बिकॉज पे तो करना पड़ेगा इफ यू गेटिंग योर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, ओके। नेक्स्ट होता है MOQ और प्राइसिंग। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर तुम ऑर्डर करते हो किसी मैन्युफैक्चरर से तो कितना ऑर्डर कर सकते हो उससे, और प्राइसिंग होता है कि तुम पैकेजिंग कॉस्ट कितनी लगा रहा है अगला मैन्युफैक्चरर, और मतलब जो भी उसकी कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरर की वो कितना प्राइसिंग लगा रहा है, और उस प्राइसिंग के पे करके तुम जब अपना प्रोडक्ट सेल करोगे उसमें तुम अपना प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करोगे। मतलब एक तो मतलब अगर तुम 50 रुपये में खरीद रहे हो तो तुम 100 रुपये में बेच रहे हो, ये वाली चीज़ होती है MOQ और प्राइसिंग में। अब होता है ब्रांडिंग और पैकेजिंग, मतलब कि तुम ब्रांड नेम प्रोवाइड करोगे, तुम लोगो प्रोवाइड करोगे, तुम लेबल टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे और पैकेजिंग टाइप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर प्रिंट और पैक करेगा, मैन्युफैक्चरर को तुम ये सब प्रोवाइड करोगे, लोगो प्रोवाइड करोगे, ब्रांड प्रोवाइड करोगे, पैकेजिंग टाइप प्रोवाइड करोगे, और मैन्युफैक्चरर से तुम्हें पैक करके देगा, ठीक है। अब लाइक बिजनेसमैन तुम जब बन सकते हो या फिर तुम्हारे खुद की इंडस्ट्री हो जहाँ पे तुम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, खुद एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री में खुद एम्प्लॉय रख के उनसे मैन्युफैक्चर करा रहे हो, या फिर तुम किसी और इंडस्ट्री में जाके उनसे मैन्युफैक्चर करा रहे हो। खुद की इंडस्ट्री तब बनेगी जब तुम्हारे पास ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगी, बट या तो इनिशियल स्टेजेस पे बेटर यही रहता है कि तुम किसी और मैन्युफैक्चरर से, किसी और इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर कराओ और उससे अपना पैसा सेव करके अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाओ, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज इज
दो बेसिक वर्ड्स जो कि होता है, एक वर्ड होता है बैच और एक वर्ड होता है डिफेक्ट रेट। किसी भी मैन्युफैक्चरर को तो अगर तुम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का बोलते हो तो वो एक साइकिल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मतलब कि 1 प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, एक साइकिल में कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बैच नंबर। डिफेक्ट रेट होता है कि एक साइकिल के अंदर, एक बैच के अंदर कितने ज़्यादा डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। उसके लिए तुम उसको पे नहीं करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि बैच नंबर में कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितना डिफेक्ट रेट है। अगर डिफेक्ट रेट आता है तो डिफेक्ट रेट में मान लो एक साइकिल के अंदर 10 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसमें से 2 प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्ट रेट में आ गए, डिफेक्टेड है, ठीक है, 2 प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का प्राइस है 100 रुपये, तो 10 प्रोडक्ट का क्या इतना हो गया 1000, ठीक है। अब नाउ 2 प्रोडक्ट्स उसमें से क्या है, डिफेक्टेड है, तो हाँ अब दो प्रोडक्ट्स डिफेक्टेड है और एक प्रोडक्ट था 100 रुपये का, तो 200 हो गए, एंड 1000 माइनस 200 इज 800, तो तुम उसे 800 पे करोगे, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर तुमसे 1000 भी ले सकता था अगर तुम्हें डिफेक्टेड का मतलब नहीं पता होता, लेकिन तुम्हें डिफेक्टेड का मतलब पता है, तो नाउ यू विल पे देम 800 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा गवर्नमेंट, मतलब लीगल बेसिस का मतलब होता है गवर्नमेंट से रीअश्योर कराना कि हाँ तुम ये चीज़ बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा फूड है तो FSSAI से तुम्हें, FSSAI से तुम्हें उसे वो कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स का है तो FAO या फिर CDSCO से रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्लोथिंग लाइन में तुम कर सकते हो, क्लोथिंग लाइन में तुम किसी भी रजिस्ट्री की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। शिपिंग मतलब कि तुम उसको ऑनलाइन डिलीवरी कराओगे फिर ऑफलाइन अपने लोकल एरिया में ही उसको रखोगे। अगर लोकल एरिया में तुम उसको रखना चाहते हो तो तुम उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर ऑनलाइन रखना चाहते हो, सोलली ऑनलाइन रखना चाहते हो, तो तुम्हें ऑनलाइन ऑल ओवर द इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड करना पड़ेगा उसका, और उसके डिलीवरी चार्जेस अलग से लगते हैं। So running a business is not easy. Running a business takes a lot of money and time and a lot of experience. Okay, running a business अगर तुम स्टार्ट करते हो, मैन्युफैक्चर करा भी लेते हो अपने प्रोडक्ट्स, तो कोई भी एक वो नहीं होती है कि भाई समवन विल बाय इट और नॉट, बट उसकी एडवर्टीजमेंट करके तुम उसको बाय करा सकते हो और उसमें बहुत पैसा लगता है। सो अर्न बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। यू आर हैविंग अ जॉब, पार्ट टाइम जॉब करो, साथ में स्ट्रगल करो अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो, बिकॉज बिजनेस अगर तुम स्टार्ट करते हो और एक बार चल जाता है, so you're going to do tremendous amount of things. Okay, I hope that you enjoyed. This was a basic video जो कि मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं I shoot this type of content, but मेरे को भी इस knowledge की ज़रूरत है, and I think we both are in the journey of becoming the best version of ourselves. So I thought कि अगर मुझे ज़रूरत है तो शायद तुम्हें भी ज़रूरत होगी, and if you enjoyed then you can stick around. I'll see you in the next one. Till then, bye bye. See you in the next one. Peace out.